Hello. Wish you a very, very enlightening greeting of this day. My dear friends, today I'm feeling really privileged to share the real lifetime experience with you. It is quite unique and it means a lot to me. This particular instance actually happened yesterday and it has it has altogether become my very very fond moment of life. It's like this. As all of us know that the Ganpati days are going on, who is regarded as the eternal epitome of divine wisdom. And my dear friends, I wish to say, आप जब कोई चीज़ किसी लगन से करते हैं एंड बहुत पॉजिटिविटी के साथ करते हैं बहुत विजडम से भरपूर होकर करते हैं तो ऑब्वियसली द ओवरऑल पॉजिटिविटी aligns in a very, very beautiful and unique way, given the fact you take excellent care of the self and hence of everyone around you. That actually develops a very, very beautiful protective shield around you. And that's what is, and that's what is actually the eternal fragrance of these divine moments, of these divine days, the fragrance which is in the atmosphere of Vighnharta. Vighnharta, कौन सी विघ्नहरते हैं? Our inner insecurity, sometimes if it creeps in, any type of insecurity if it creeps in. So if we develop that particular confidence, that particular inner vibe, develops a very very beautiful protective shield around us, cultivated with a beautiful blend of wisdom, the layer of the foundational layer of wisdom, and that hence very beautifully guides you to how to be a beautiful enabler to remove the obstacles, right? So actually the thing goes like this, and सब कार्य बहुत भरपूर तरीके से सफल होते हैं अगर आप उस इंटेंट के साथ अगर चल रहे हैं, राइट? उस इंटेंट के साथ अगर चल रहे हैं, राइट? The universe will attract the energy in that particular way. It will bring the overall positivity if the positivity is inside you, and आप इस तरीके से अगर अपने आप को स्ट्रांग बनाकर अगर आगे बढ़ते हैं, यही तो इटर्नल मैसेज है, राइट? So I would like to say the things go like this. Actually, yesterday, when I was yesterday evening, rather last night, when I was coming from a place, actually गणपति जी डेज चल रहे हैं and मैं मेडिटेशन करके लौट रहा था, right? From one spiritual organization, गणपति जी के जैसे beautiful days चल रहे हैं, and I was gifted and I was given the prasad to me, and I was traveling by auto. The auto driver को भी उन्होंने दिए, and it was in a plastic glass, right? एक liquid prasad था. All of us had it. So like I also had it and he also had it. तो I said कि ये जो glass है आप यहाँ नहीं dispose कीजिए, it doesn't look nice. तो मैंने उन्हें बैग में रखा, and he said हाँ कहीं डस्टबिन होगा तो he will throw. तो like during the way when we were about to reach the location, उन्होंने एक गौशाला था, उसके साथ एक थोड़ा सा गार्बेज एक तरीके से, बट एक वो गौशाला था बेसिकली, लॉट ऑफ काउज वर देयर. तो उन्होंने जहाँ उनका ऐसे रखा था सब वहाँ पे जो लाइक वेयर काउज फीड देमसेल्व्स, उन्होंने वहाँ पे वो ग्लास रख दिया. उन्हें लगा कि वो कॉर्डर में है या गार्बेज टाइप है, बट काउज वर देयर, एंड मुझे एकदम से लगा, मैंने कहा इट्स नॉट सेफ फॉर द काउज के लिए सेफ़ नहीं है. तो वो तो अननोइंगली ले लेते हैं, एज ऑल ऑफ अस नो प्लास्टिक. तो उन्होंने भी अनअवेयर ऐसे रखा था, तो गलती से. तो एंड देन मैंने उनको बोला भैया ऐसे मत फेंको. उन्होंने साइड में रुक के जब फेंके तो मैंने कहा, तो उन्होंने शायद सही से सुने नहीं,
एंड देन उनका कोई फ़ोन आ गया तो वो एकदम फ़ोन पे बात करने लग गए। तो मुझे था, मैंने उनको कहा रुको, मतलब रुको मैं अगर उठाता हूँ। तो उन्होंने वो चीज़ सुनी नहीं, ही डिडंट हियर दैट थिंग। होता है ट्रैफिक का शोर है व्हाटएवर, बट मैंने कहा रुको, तो मुझे लगा शायद रुक जाएंगे। एंड मैं जैसे ही ऑटो से उतरने लगा उन्होंने ऑटो आगे बढ़ा दिया, लाइक जैसे हम आगे ट्रैवल कर रहे हैं ऑन द वे, तो उन्होंने ऑटो बढ़ाया एंड ही वॉज ऑन द फोन। तो my one photo was down, my one leg was down and other leg was in the auto and he was on the phone, वो सुन नहीं पा रहे एंड ऑटो आगे बढ़ा रहे हैं। बट मेरे मन में ये इंटेंट था कि वो काऊ को हार्म ना हो, एज ऑल ऑफ अस नो दैट कैटल इस चीज़ पे फीड कर लेते हैं एंड ऑल ऑफ अस नो आजकल काउस की क्या सिचुएशन हो रही है, राइट? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे काउस बैठे थे। तो किसी तरीके से उनका एक डिवाइन इंटेंट था, मेरे एकदम बैक पे एकदम पेन आया, बट somehow उनको कैसे ट्रिगर हुआ, he stopped the auto, एंड मैंने फिर जाकर चाहे थोड़ा पेन हुआ, बट पेन हो रहा था एकदम से क्योंकि एकदम जर्क आया, बट आई वेंट एंड पिक्ड अप दैट ग्लास फ्रॉम दैट लिटर एंड वो उठा के मैंने अपने बैग में रखा एंड देन लाइक व्हेन वी केम होम एंड देन आई डिस्पोज्ड ऑफ। तो इसमें ड्राइवर भैया की भी गलती, उन्हें तब पता नहीं लगा, ही वॉज ऑन द फोन एंड देन अर्लियर उन्होंने अनअवेयर रखा था, अपने से कोई गलत तो करता नहीं है काम। तो आई जस्ट विश टू से दैट इफ वी कैरी द पॉजिटिव इंटेंट एंड विद अ वेरी स्टेबल पीस ऑफ माइंड, तो सब कुछ बहुत ईजिली होता है और अपने आप डिवाइन फोर्स कम्स, अ डिवाइन फोर्स इज देयर टू make everything aligned in a very beautiful way. So we just need to trust it. एंड इसी को हम विघ्नहर्ता कहते हैं कि हमारे अंदर जब हम खुद निर्विघ्न होकर चलते हैं, अपना ऑरा को अगर ऐसे बनाए, अपने थॉट प्रोसेस को ऐसे बनाए, अपने आइडियोलॉजीज़ को ऐसे बनाए, तो अगर पॉजिटिव इंटेंट है, गुड इंटेंट है, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ एक लाइन में आता है एंड ऑल वेंट गुड। उसमें भैया की भी गलती नहीं, तो आई ऑल्सो फॉरगिव हिम। बट इससे हम क्या सीखे? उन्होंने भी एक लेसन लर्न किया कि हमें गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए। हैड ही नॉट टॉकिंग ऑन फ़ोन एकदम से जो बजा एंड ही वॉज ट्रैवलिंग, तो वो नहीं होता, वो भी ट्रैफिक में। एंड दूसरा गौशाला में ऐसे रखना विच इज़ नॉट गुड, तो उन्होंने ये चीज़ सीखी। एंड चाहे हम प्रिकॉशन लेके उतरे, हमने उनको बोला तो लाइक तो हाउ टू बी स्टेबल एंड मूव अहेड, हम इससे ये सीखते हैं। तो मेरे लिए ये एक थोड़ा यूनिक लेसन था। जैसे गणपति जी के डेज चल रहे थे, आके इवन तो थोड़ा बैक में पेन था, बट नाउ इट गॉट सेटल, इट गॉट फाइन, ठीक हो गया। बट मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि ऐसे वन लेग इन द ऑटो एंड वन लेग ऐसे, तो वो एक्सीडेंटल से जो प्रोटेक्शन हुआ, सो हाउ डिड दैट गेट फ्रुक्टिफाई बिकॉज ऑफ दिस। मेरे लिए एक थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंस, थोड़ा लगता है ना एकदम से अलग, व्हेन ऑटो इज ट्रैवलिंग एंड आपका वो चल रहा है, आपका एक पैर नीचे और ऊपर, आपको पता नहीं एकदम से क्या हुआ। तो व्हाट स्ट्राइक हिम सडनली कि ही स्टॉप्ड, उनको आवाज़ भी नहीं जा रही थी बिकॉज ही वॉज टॉकिंग ऑन फोन, एंड वो क्या हिम्मत दिए कि मैं फिर भी जाके वो ग्लास उठा के लाया। तो इसके में कोई वो नहीं है। कुछ लोग अगर कभी कहें लाइक आजकल है कि हम क्यों उठाएँ, हम क्यों ऐसे उठाने जाएँ, किसी का हम ऐसे क्यों रखें, बट मैं जो एक आपसे एक अपना पर्सनल एक लेसन शेयर कर रहा हूँ इस पोर्टल पर कि अगर हम अंदर से निर्माणचित होकर चले, निर्माणता हमें क्या सिखाते हैं? निर्माण मीन्स किसी कार्य को क्रिएट करना, निर्माण करना, राइट? एंड अनदर मीनिंग ऑफ निर्माण इज कि आप में कोई अभिमान रहित अगर आप करो, राइट? कि विदाउट कि सब एक बराबर हैं, विच हेल्प मी टू कल्टिवेट दिस डिवाइन विजडम कि वो ग्लास अगर उनका भी है तो उठा लो वहाँ से, चाहे वो लिटर है या फिर भी जाओ उठाने, एंड उनको भी एकदम ब्यूटीफुल लव से कल्टिवेट करना। एंड फिर आके हमने वो अपने घर में जो आके फिर डस्ट में उसको आराम से रखा। तो कैसे? बिकॉज वी नो कि उन्होंने इंटेंशनली तो कुछ किया नहीं था। तो this helped to create a very very beautiful message, and it's very beautiful message. निर्माणता और निर्मल मल मीन्स कि मन में अगर मैल ना हो, बिकॉज अगर हम मेडिटेट करके आए तो मन स्वच्छ, विच मीन्स क्लीनलीनेस, जो अंदर एक हार्डनेस होता है, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ द पोलाइटनेस कि हम वो पोलाइट रह के उनसे चले। और उन्होंने भी बहुत पोलाइटनेस से जवाब दिए, बहुत पोलाइटनेस से चला। इवन तो अगर उन्हें उनकी गलती अगर रियलाइज़ हुई, वो बहुत पोलाइटनेस से
एंड सामने वाले बंदे को पावर रेडिएट हुई, विच इज़ द इटर्नल फ्रेग्रेंस ऑफ दीज डेज। हर डे हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। एवरी डे इज़ द गणपति डे, नॉट ओनली वन डे, या हर डे ऑस्पिशियस है। हर फेस्टिवल का एक डिवाइन ऑस्पिशियस मीनिंग होता है जो कैरी करता है, राइट। एंड गणपति मीन्स बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग। वी ऑलवेज हैव टू बिगिन, या यही एक रास्ता बिगिन करने का, निर्माणता और निर्मलता, निर्माणता और निर्मलता। एंड उसका फाउंडेशन है अनकंडीशनल लव, दैट ऑल ऑफ अस आर टुगेदर, ऑल ऑफ अस आर वन, ऑल ऑफ अस आर वन। एंड हर एक की उनकी स्ट्रेंथ्स के लिए उनको ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं। वे हेल्प किया, एंड तभी तो वो भैया जो हैं उनको हम वो मैसेज दे पाए कि वो जो इस ब्यूटीफुल डे पे अगर वो उन्हें सीख पाए कि हमें फ़ोन चलाते हुए बात नहीं करना। आई डेंट से हिम क्या फ़ोन पे बात करो, बट ही रियलाइज इट हिमसेल्फ, एंड ही रियलाइज इट कि प्रसाद की भी एक अहमियत है। लाइक अगर हम एक सीक्रेट प्रसाद अगर एक लेते हैं, एंड दूसरा हमें कैटल फील्ड, कैटल को हमें वहाँ ऐसे नहीं रखना चाहिए। ये तो है टेक्निकली कि ऐसे करना है, बट उसका फाउंडेशन क्या है? अनकंडीशनल फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड इटर्नल लव ऑफ द ह्यूमैनिटी, विच इज़ द रिलीजन ऑफ एवरी सोल, and for which God has created these beautiful festivals in this eternal era of this Srishti. In this eternal era of this Srishti जो भी current phase है, इसमें जब ये festivals जो हम देखते हैं, जो ये एक सृष्टि का जो ये particular era है, जिसमें festivals all across the globe, all around the year जो ये आ रहे हैं, right? And यही एक शुरुआत करता है न्यू बिगिनिंग्स की। निर्माणता और निर्मलता से निर्माण होती है नव सृष्टि की, नव युग की ब्यूटिफुल बिगिनिंग्स ऑफ द इटर्नल एरा, एंड दैट इज़ द इटर्नल मैसेज। हर कोई अपना मैसेज कन्वे करते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, बट हाउ यू नीड टू कम्युनिकेट और पुट योर पॉइंट अक्रॉस, दैट रियली मैटर्स अ लॉट, दैट रियली मैटर्स अ लॉट। तो मैं जो इससे सीखा, एंड मैंने जो ये खुद से एक पर्सनल एक्सपेरिमेंट, द पावर ऑफ लाइक योग, पावर ऑफ मेडिटेशन, पावर ऑफ द साइलेंट एंड काम माइंड, हाउ इट हार्नेसेस। हर चीज़ अपने वक्त पे ठीक होती है, बट कैसे ठीक होती है, दैट मैटर्स योर एंटायर वाइब, योर फाउंडेशन। तो दिस नीड्स टू बी अप्लाइड एल्सवेयर एंड एवरीवेयर। एंड जो अगर हमें थोड़ा सा वो हुआ, अगर हम ऑटो से अगर ऐसे आ रहे थे एंड हमें थोड़ा सा ऐसे लगा, वो ब्यूटिफुली हील हो गया, बहुत ब्यूटिफुली हील हुआ। एंड मैंने वो कैरी नहीं किया कि माइंड में अगर वो मेमोरी रहे, हमारे माइंड में वो मेमोरी है कि व्हाट डिड आई लर्न, एंड उससे कितना शक्तिशाली पावरफुल फील होता है। तो I am feeling really privileged to share this real lifetime experience of mine with you. And the eternal core message of this, the safety of the self. The safety of the self. मैंने अपना पूरा सेफ्टी रख के, अपना ध्यान रख के सब किया, एंड वही हमें मेडिटेशन एक चीज़ें सिखाता है। टू एवरी ह्यूमन बीइंग इट टीचेस अस टू हाउ टू बी ह्यूमन, एंड अपना पूरा ध्यान रख के। तो how did that divine force automatically help? And divine force कैसे help करता है? वो इस तरीके से help करता है कि आप जो एक स्वच्छ मन से अगर आगे करें, every being is so pure and so very beautiful from within. Every being actually. बस एक कभी कभी कुछ ऐसे layers है जिसको हमें ऐसे clean करना है, and that is the power of meditation. That is the power of the silent mind. That is the basis for which we need to realize the self and him through the real I. And walk into purity, peace, purity in thoughts, peace in mind, and love in heart, joy in work, and cultivated with the knowledge in brain, and hence beautiful wisdom, and then power in decisions. एंड अल्टीमेटली आप अगर ऐसे कोई कार्य उसमें करेंगे, वो निर्विघ्न होता है और वो ऑटोमेटिकली सिद्ध होता है, एंड दैट ब्रिंग्स द इटर्नल प्रॉस्पेरिटी। इसमें प्रॉस्पेरिटी क्या हुआ कि इतना ब्यूटीफुल एक तो कैटल का हमने मैसेज दे पाना है। दैट इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ माइंड, दैट इज़ रियली द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ माइंड टू रियली डू समथिंग फॉर द कैटल, टू डू समथिंग फॉर द मैनकाइंड इन दिस मैनर। तो वो एक रिद्धि ले आया, एंड एक जो सेवा एक दूसरे बींग को जो सिखा पाए कि कैसे टू पुट योर पॉइंट अक्रॉस, एंड वो जो एक सही गलत भी अगर किसी को सिखा पाएँ कि आप कैसे वो करो, कैसे शक्तिशाली है, और कैसे डाउन टू अर्थ हो कि आप कैसे चलो। इसमें कोई ऊंच नीच वाला भाव नहीं, अगर हम जाके ग्लास उनका उठाएँ और ऐसे फेंके। तो
दैट इज़ रियली एंड दैट इज़ इटर्नली पावरफुल, दैट इज़ इटर्नली पावरफुल। वही तो निर्विघ्न हमें चीज़ सिखाता है, कैसे निर्विघ्न रहें, कैसे निर्विघ्न होकर कार्य संपन्न हो। ओम शांति। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।